نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکامات کو دیکھا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ آج ہم کرنے والے ہیں اخفا کو۔ نون ساکن پہلے دن سے یہ دیکھیں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ماشاءاللہ قرآن بہت آسان ہے، تھوڑا سا سکون سے، صرف تسلی سے بیٹھ کر سکون سے اس کو سننا ہے، اس کو پھر ایک ایک حرف کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ بسم اللہ ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کھول کر بیان نہ کی ہو۔ اور ماشاءاللہ سے اتنے ہمارے پاس اچھے ٹیچرز، معلم، اسکالرز ماشاءاللہ سے بہت ہمارے پاس چیزیں ہیں۔ آج ہم بہت ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور آج ہم دیکھیں گے اخفا کا قاعدہ۔ ہم نے اظہار کیا، اظہار کے کتنے حروف تھے؟ 6۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، اس میں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اظہار کا۔ اظہار کے 6 حروف ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا ادغام کو۔ نون ساکن، اظہار پر تھوڑی سی بات کرتے جائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ حروف حلقی میں سے یہ 6 حروف آئیں گے تو اظہار یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ادغام کو۔ ادغام کے بھی 6 حروف تھے۔ ادغام کے کون سے 6 حروف تھے؟ یا، را، لام، میم، نون اور واو۔ اس مجموعے کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ یرملون کہلاتا ہے۔ پھر اس یرملون کے بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اس کو دیکھا۔ ایک کامل غنہ کے ساتھ، ایک کامل ادغام تھا۔ ادغام کا کیا مطلب تھا؟ مرج ہو جانا، مدغم ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز میں مل جانا، اتنی خوبصورتی سے مل جانا کہ اس کی اصل برقرار رہے، یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز میں اتنی خوبصورتی سے مکس ہو گئی تھی، ہم نے مدغم کر دیا تھا اس کو، اس میں مرج ہو گئی تھی۔ کون سے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف ادغام آئیں گے یہ ہمیشہ مشدد تھے، ہمیشہ ہی مشدد ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پر تشدید نہیں بھی آتی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ حرف یرملون جو ہوتے ہیں وہ مشدد ہوتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین ہم نے اس کے اندر مرج کر دیا، اس کو اچھے سے پڑھا، اس کو پھر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک کامل ادغام غنہ کے ساتھ، ایک کامل ادغام بغیر بدون غنہ کے بغیر، ایک آدھا 50-50 کہ اس میں گنگناہٹ یعنی کہ نون اور تنوین کی آواز اس میں تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے اقلاب کو دیکھا۔ الحمدللہ یہ رب کا فضل ہے، اقلاب کا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ایک فوراً ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے گا تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میم، کامل میم، مکمل ایک میم بنی ہوگی، جس طرح ہم حرف تہجی میں دیکھتے ہیں مکمل میم۔ تو پھر ہم نے کیا کیا تھا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کی بجائے ہم نے میم ادا کیا تھا، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ جیسے قولا بلیغا، تو ہم نے کیا کیا تھا؟ میم ادا کیا تھا، تنوین کی بجائے میم ادا کیا تھا ہم نے۔ اذ انبعث، اذ انبعث، تو یہ بھی ہم نے نون ساکن، ذا کو ہم نے میم کے ساتھ پکڑ کر میم ادا کیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں اخفا۔ 6 حروف اظہار کے،
6 हरूफ इदगाम के, एक हर्फ किसका हो गया, बा का। 12 और 1 13, 13 हरूफ तो माशाल्लाह से अब हमने उनको अलग से कर लिया। बाकी हमारे पास ये 15 हरूफ बचते हैं। इसमें ता, सा, जीम, ज़ा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दो, तो, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, तो इसे हम इख्फाए हकीकी कहते हैं। अगर अभी क्योंकि हकीकी की अभी हम इस डेफिनेशन में नहीं जाते, क्यों कहते हकीकी ये भी इंशाल्लाह हम खोल के करेंगे, लेकिन अभी हमने पहले दिन से एक बात की, इस हम कोर्स को, इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेकर चल रहे हैं। इधर वो हशुम क्या है, शफातान क्या है, असनान क्या है, दवाहिक क्या है, नवाफिज क्या है, तो ये सब चीज़ें, सनाया उलिया, सनाया सुफलिया, सब चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन अभी हमने पूरा फोकस करना था मखरज पर, अहकामात पर। ये चीज़ क्या है, ये सब चीज़ हम सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ हमारे हाथ में, ग्रिप में आ रही है माशाल्लाह। अब तक मेरे ख्याल में 16 में से ज़्यादा हम अहकामात सीख चुके हैं, हमें पता ही नहीं चला कि 16 के करीब, यानी 15-16 के करीब हम अहकामात सीख चुके हैं, हमें पता ही नहीं चला। अल्लाह के फजल से हम कितना आगे चले गए हैं। अब हमने क्या करना है कि जब ये हरूफ आएंगे नून साकिन और तनवीन के बाद, इन 15 हरूफ में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो हमने क्या करना है, इख्फा करना है। इख्फा का मतलब होता है खफीफ से, यानी कि हल्का, हल्के से, यानी कि इसको हमने इख्फा होता है छुपाना। अब हम किसको छुपा रहे हैं, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को हम नाक में छुपा रहे हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक देखी थी जब हम क्लास में, जब हम क्लास कर रहे थे तो लास्ट टाइम, तो हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था कि ज़बान को ऊपर चिपकने मत दीजिएगा, तालू की तरफ चिपक, अगर वो नीचे वाले दांतों के पास रहती है तब भी मखरज अदा होगा, नीचे वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा ऊपर भी आ जाती है तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा ये ऊपर चिपके नहीं। जैसे अन, इन, उन, इस वक्त मेरी ज़बान पूरी ऊपर तालू को चिपक रही है, हमने इसको चिपकने नहीं देना, ज़बान को नीचे रखना है। अब इसके लिए हमने ट्रिक्स देखे, फमा, अब ये देखे, मीम के बाद जा के मखरज के नजदीक होठों को फैला लिया, होठों को फैलाकर, वही ट्रिक्स जो हमने किस में सीखी थी, हरूफ ताजी में। फमा ज़ुहज़िहा, फमा ज़ुहज़िहा। अब हमने क्या किया है, जा के मखरज के होठ फैलाए मुस्कुराने वाले अंदाज से, मीम के बाद जा के मखरज के बाद पास आकर हम खड़े हो गए हैं और हमारी आधी आवाज नाक में से आ रही है। सुनिएगा, फमा ज़ुहज़िहा, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए, जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के करीब है, बेशक आप उसको नीचे जड़ से थोड़ा सा ऊपर भी लगाएं या थोड़ी सी ऊपर भी आ जाती है, लेकिन ऊपर तालू की तरफ नहीं उठनी चाहिए, ज़बान ऊपर उठनी नहीं चाहिए। फमा, अब देखिए नाक में से आवाज आ रही है, मीम के बाद जा के मखरज पर खड़े हो जाएंगे, फमा ज़ुहज़िहा, फौरन जा अदा करेंगे, किसके बाद, नून साकिन की आवाज हमारे नाक में चली गई, ये है। अब किसकी आवाज, नून साकिन की आवाज हमारे नाक में से आ गई है, इख्फा हो गया, इसी को इख्फा कहते हैं। हमने उसको छुपाया है, नून साकिन की आवाज को किस में छुपाया, अपने नाक में। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये और ज्यादा इजी, लेकिन हमने करना क्या है, हल्की सी प्रैक्टिस। अब मैं होठों को मुस्कुराने वाले अंदाज से फिर फैला रही हूँ, अब देखिए नाक में से बात, कफरतुम, कफरतुम। अब हमने क्या किया, रा को भी मुखफ़्फ़म किया, नून के हमजा के बाद, हमजा के नीचे जेर है, इसके बाद हमने काफ के मखरज, क्योंकि अब वो तो हलक में से निकलेगा, अब हमने उसको क्या कहते हैं, हलक के दरमियानी हिस्से से, अब हमने उसको ज़बान को ऊपर लगाया, लेकिन ज़बान को ऊपर चिपकने नहीं दिया। क्या किया, ज़बान को ऊपर चिपकने नहीं दिया। सबरना, सबरना, वही सारी ट्रिक्स जो हम मखरज में सीख के हैं वो यहाँ पर। हमजा के बाद हमने शीन अदा करना है, नून को भूल जाए, शअना, शअना, हमने क्या किया है,
अंशअना, हमजे के बाद शीन अदा करके नून की आवाज खुद ब खुद हमारे नाक में जाएगी, लेकिन जबान को ऊपर नहीं उठने देना। मंसूरा, मंसूरा, ज़नंतुम, ज़नंतुम। अगर कोई हलक किसी का प्रेस भी हो जाता है तब भी ये आवाज़ निकलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँ मेरा हलक प्रेस ना हो मेरी ज़बान से। वही ट्रिक्स जो हमने हरूफ तहजी में सीखी। अब हमने क्या किया, ज़बान को ऊपर नहीं उठने देना, फ्रंट से, पीछे से की बात, पीछे की नहीं, फ्रंट से हमने ज़बान को ऊपर नहीं, तालू से नहीं लगने देना। जैसे समनन क़लीला, अगर यहाँ पर अगर आपका हलक क्लोज भी होता है तब भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं हलक क्लोज नहीं करती, समनन क़लीला, समनन, अगर अब हलक क्रॉस करूंगी, समनन क़लीला, फ्रंट से ज़बान मेरी नीचे वाले दांतों की जड़ के पास पड़ी थी। अगर जब मेरा हलक क्लोज था लेकिन फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास थी, मैंने मीम के बाद क़ाफ अदा की है, समनन क़लीला। अब हलक क्लोज नहीं करती, समनन क़लीला, साथ साथ मैं अपने नाक को भी प्रेस कर रही हूँ कि गुनगुनाहट मेरे नाक में से है। अब मैंने हलक को क्लोज नहीं किया, फ्रंट से ज़बान को नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रखा, मीम के बाद क़ाफ की अदायगी की। फिर सुनिएगा, समना क़लीला, क़ाफ मुफ़ख़म हरूफ है, समना क़लीला, मस्जिदन दिरारा, मस्जिदन दिरारा। अब मैंने क्या किया है, दा के बाद दा अदा किया, मस्जिदन, दा, दा के बाद दो अदा किया है, खल्क़न जदीद। तन्वीन और नून की आवाज को नाक में छुपाने की कोशिश की है। अब रा के गमरतिन साहून, गम, गमरतिन साहून, पीछे से हलक को क्लोज नहीं कर रही। वही ट्रिक जो हमने हरूफ तहज्जी में सीखी, वही ट्रिक ज़बान को नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख रहे हैं। गमरतिन, तिन नहीं कहना, इजहार नहीं करना, तिन नहीं कहना, ना ही यहाँ मुशद्दद है, ना ही यहाँ इजहार हो रहा है, यहाँ इख्फा हो रहा है, यहाँ हम छुपा रहे हैं। अब देखें, तनवीन के बाद जा आया तो इख्फा किया, नून साकिन के बाद नून साकिन के बाद काफ आया तो इख्फा किया, नून साकिन के बाद उस्साद को देखा, अस, सबरना। अब ये देखिए उस्साद की वजह से हमने क्या किया, हमजा भी सबरना, सौद मुफख्खम, बा लाइट, फिर रा मुफख्खम, ठीक, मुफख्खम का मतलब भारी होना, पुर होना, ठीक है। हमने क्या किया, नून साकिन के बाद शीन आ गया, नून साकिन के बाद सा आ गया, नून साकिन के बाद ता आ गया, तनवीन के बाद क़ाफ आ गया, तनवीन के बाद दो आ गया, तनवीन के बाद जीम आ गया, तनवीन के बाद सीन आ गया, तनवीन के बाद सौद आ गया, तनवीन के बाद सीन आ गया। वही हरूफ जो 15 हरूफ अभी हमने देखे थे। अब हमने क्या किया है, उसको हमने इख्फा किया है, छुपाया है, छुपाने का वही तरीका है और कुछ भी मुश्किल नहीं। अमलुन सालिहुन, अमलुन सालिहुन, ये देखिए अमलुन नहीं क्या, लुन, ऊपर जबान को ऊपर नहीं जाने दिया, बस ये ट्रिक है, जबान को ऊपर तालू की तरफ नहीं जाने देना। दुआ कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अज़ान हो रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न व अऊज़ु बिका मिनल हरमी व अऊज़ु बिका मिनल बुख्ल। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह लेती हूँ सुस्ती से, और मैं तेरी पनाह लेती हूँ बुज़दिली से, और मैं तेरी पनाह लेती हूँ नाकारा बुढ़ापे से, और मैं तेरी पनाह लेती हूँ बुखल से। एक मरतबा फिर दुआ दोहरा